Now Saturn is in Satavisha Nakshatra. It has already entered Pada 2. I just wanted to discuss. I just wanted to know what have you suffered in last few months when Saturn entered Aquarius and Saturn entered after Dhanishta into Satavisha, because Satavisha is a Rahu Nakshatra. So it will give you result of Saturn in Rahu Nakshatra will always give you result of Saturn conjunct Rahu, that is Shapit Yoga, and I think 1968 bonds are having Saturn Rahu in Piscean. It can be your first, second, third, fourth, any house. And 2002 bonds have Saturn Rahu conjunct in Taurus. And I think around 1980-82 bonds, Saturn Rahu conjunct in Leo. So these people will get result like blows, okay, of Saturn in Rahu Nakshatra in Satavisha. The result will be like Saturn Rahu conjunct only. So Saturn is a judge. Saturn will give you result. Saturn definitely will not please you. Saturn किसी को please करने के लिए नहीं होता. So like I had a dream of having a rescue at home, like rescue of dogs, because I had rescued cats. I have called to Gaushala to rescue cow. I have rescued birds also, but I'm most fond of rescuing dogs actually. So dog rescue के लिए मतलब ये दिसंबर ऑनवर्ड क्या हुआ था, दिसंबर में there was a bitch जिसको पूरा मोहल्ले वाले खिलाना शुरू किए. उसको जब भी बीमार पड़ती थी उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं लाती थी, लेकिन मैं अपने घर के सामने नहीं खिलाती थी. जैसे 1 महीना हो गया वो ठीक हो गई, उसको जहाँ से लाए हैं वहाँ उठा के रख के आती थी. घर के सामने कभी खाना नहीं देती थी. उसी स्टॉप में एवरी इवनिंग जाके मैं उसको खाना खिला के आती थी. अब प्रेग्नेंट थी, पूरा मोहल्ले वालों को पता नहीं क्या गया आ गया. एवरीबडी स्टार्टेड फीडिंग हर. सिर्फ फीड करना नहीं, एवरीबडी स्टार्टेड फीडिंग हर, गेव डॉग बेड, गेव टॉयज एंड ऑल. वो डॉग जो है she got stuck here and she gave birth to 8 puppies. और उसके बाद 8 जैसे बच्चे पैदा हो गए, जो लोग खिला रहे थे वही लोग चिल्लाने लगे, मीटिंग बुलाया. बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किए कि उसको फेंक दीजिए बच्चों को. मतलब खिलाने का मतलब हिंदू धर्म में एक है ना कि खिला के पुण्य कमाएंगे. सो देयर आर पीपल जिनको पुण्य कमाने की शौक बहुत है, लेकिन वो पुण्य कमाने के लिए 2-4 दिन खाने के बाद जब बच्चे पैदा हो जाएंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने वाले नहीं है कि चलो 8 बच्चे हुए, हम लोग 8 टेनेंट 8 बच्चा ले लेते हैं. दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर नॉट गोइंग टू टेक. सो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा फेंकना, अडॉप्ट करना, दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फॉर शर्मिता ओनली. तो उस समय ईशान का एग्ज़ाम चल रहा था. इवन देन आई ड्रॉप द बेबीज़ फ्रॉम द प्लेस दैट बिच हैज़ कम, दैट वॉज फ्लैट, जिसके कार पार्किंग में सिस्टर यूज टू लीव with the watchman. The watchman used to take care of sister, and I left sister in that car parking area. On बहुत गद्दा वद्दा देखे, दरी गद्दा, everything was there. Sister and all her babies, I left there, and everything was running well because 3 times a day we were going there to feed the babies. सुबह एक बार जाती थी कॉलेज ले जाने के पहले ईशान को, कभी कभी ईशान जाता था खिलाने के लिए. दोपहर में मैं कॉलेज से ड्रॉप करके वापस आती थी, तब फट से एक बार खिला देती थी. और शाम को एक बार जाके मतलब लेट लाइक 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी एक बार खिलाने जाती थी. सो व्हाट हैपेंड व्हेन सैटर्न एंटर्ड सतविशा, अचानक से क्या हुआ, बाय मिस्टेक आई मिक्स्ड अप, आई स्टार्टेड मिंगलिंग विद सम पीपल जिनके घर में नॉनवेज पकता है. मतलब if you are a professional healer, you cannot eat non-veg yourself. You cannot mingle with people also who takes non-veg. You cannot have extramarital, or you cannot have more than one sexual relation in your life, and you cannot mingle with that kind of a person who is having more than one physical relations in their life. And it is about
non-veg food and alcohol and all these things. You cannot have alcohol, neither you can mix up with people who takes alcohol, and so many things are there. Means लोग कहते हैं ना कि आप 4,000 ले रहे हो हीलिंग करने के लिए, 5,000 ले रहे हो. The reason is I have sacrificed everything. मैं नॉनवेज खाना बहुत पसंद करती थी. For being professional healer, I stopped having non-veg, alcohol, गांजा भांग दारू. I don't like it, hate all those things. मतलब बहुत अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स को मैंने छोड़ा है सिर्फ अल्कोहल वाले धंधे के लिए. मतलब इन एवरी ओकेशन दे विल ड्रिंक. तो ऐसे लोगों के साथ तो मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट स्मेल इटसेल्फ. देयर माइट बी पीपल हु आर हैविंग मेनी गुड हैबिट्स बट दे ड्रिंक इन एवरी ओकेशन. अब कोई भी ओकेशन में उनके घर में 30 लोग हैं एंड एक्सेप्ट मी ऑल द अदर पीपल आर ड्रिंकिंग. सो ऐसे एम्बियंस में ठीक है, इससे बेटर है क्या आई विल लीव माई होल लाइफ अलोन. मैं अपने घर के बंद दरवाजे के पीछे ही रह लूँगी एंड आई विल हील पीपल ऑनलाइन. मैं सामने बैठ के हील नहीं करती, क्योंकि जिसको हील कर रही हूँ शायद वो भी नॉनवेज लेते हैं, शायद वो भी दारू पीते हैं. ऐसे लोगों को तो मैं हील नहीं करती. देन स्ट्रिक्टली आई हैव टू से कि यू हैव टू स्टॉप टेकिंग नॉनवेज और अल्कोहल ऑल दीज थिंग्स फॉर 5 to 10 days व्हेन आई एम हीलिंग यू. तो उसके बावजूद कोई लोग झूठ बोलते हैं एंड अल्कोहल या नॉनवेज ले लेते हैं. आई टेल देम वन थिंग कि अगर आप ले रहे हो, मैं आपको हील कर रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होगी और मेरी जैसी तबीयत ख़राब लगेगी आई विल स्टॉप. और अगर 4 दिन का और 5 दिन का हीलिंग मैं बीच में स्टॉप कर दूँगी, आपका बुरा होगा, अच्छा तो होगा नहीं. ऐसे डराना पड़ता है क्योंकि आप अपने पर्सनल लाइफ में नॉनवेज खाते हो या दारू पीते हो, दैट इज़ अप टू यू. बट आई एम ए हीलर. मैं अपना प्रोफेशन बर्बाद नहीं करूँगी आपके साथ मिक्सअप करके. इफ़ यू आर अ क्लाइंट, send me money, screenshot, and stop having non-veg for all those 5-6 days जब when I am healing you. ठीक, उसके आगे पीछे आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या कर्मा है. यू आर हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल, और यू आर हैविंग मेनी रिलेशनशिप, और यू आर हैविंग नॉन-वेज, और यू आर हैविंग दारू, गांजा, भांग, नथिंग मैटर्स टू मी. आप पैसा देके मुझसे हीलिंग करा रहे हो, तो मैं ये चाहूँगी कि वो स्ट्रिक्टनेस आप कुछ दिन के लिए फॉलो करो ताकि आपके ऊपर हीलिंग काम करे. वॉट एवर. सो देन विद इन फ्यू डेज आई स्टार्टेड गोइंग टू एन आश्रम, जिस आश्रम के साथ ही होटल था एंड होटल में नॉनवेज पकती थी. वो मुझे पता नहीं था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था. होटल में जाने के बाद से मैं आई एम लूजिंग एनर्जी. वाई? मतलब आई वॉज फीलिंग ड्रेन्ड, जबकि आश्रम में या 3-4 सन्यासियों के साथ मेडिटेशन करने से वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी एड ऑन होता है. तो एनर्जी लूज हो रहा है, ऐसा क्यों फील हो रहा है? आफ्टर माई माता जी डाइड आई एम फीलिंग द सेम. कोई भी आश्रम में मैं जा रही हूँ जहाँ माता जी जाती थी, वहाँ भी जाते हुए आई एम फीलिंग ड्रेन्ड. मुझे बहुत नेगेटिव फील हो रहा है. शी वॉज अ वेरी हाई एंड प्योर सोल. तो उनके जाने के बाद बाकी जो लोग हैं वो प्योर नहीं हैं. अगर इफ़ दे हैड डन मेनी रॉन्ग थिंग्स इन देयर लाइफ, या इफ़ दे हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग बट दे आर सपोर्टिंग समवन हु इज़ डूइंग रॉन्ग थिंग्स. अब लोग कहेंगे यू आर जजमेंटल. येस, आई एम जजमेंटल. आई एम वेरी प्राउड टू बी जजमेंटल. एंड अगर मैं जजमेंटल नहीं होती और ये सब मैं खुद करती और करने वालों के साथ मिक्सअप होती, तो मैं कभी भी प्रोफेशनल हीलर नहीं होती. और दारू पीने वाले लोग, मतलब आई डू रिमेंबर एक फ्रेंड के घर मेरा जाना बंद हुआ बिकॉज हर मदर इन लॉ टोल्ड मी कि अच्छा हीलिंग करने से बीमारी ठीक हो जाती है, तो सारे हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे. नहीं आंटी, कोई हॉस्पिटल नहीं बंद होगा. आप 60-70 की एज में दारू पीते रहो, कोई हॉस्पिटल बंद करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब आप बेइज्जत करते रहो. जो नेचुरली द पीपल हु ड्रिंक्स ना, इफ़ दे गेट समवन हु डज नॉट ड्रिंक, उसको बेइज्जत करने में बहुत मज़ा आता है. इफ़ समवन टेक्स नॉन-वेज एंड कोई नॉन-वेज नहीं लेता है, उसको बेइज्जत करने में बहुत मज़ा आता है. मैं भी की हूँ ये आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले. उसके बाद छोड़ी हूँ ना. सो रेस्क्यू के लिए जो मेरा ड्रीम था वो दैट हैपेंड विद बैंग ऑन. लाइक ऑल दोज 8 pups वी लेफ्ट इन दैट पर्टिकुलर फ्लैट. 6 of them died in accident after taking vaccination. 9-in-1 का वैक्सीनेशन 900 पर हेड लगता है. तो हम तो कुत्तों से कमा नहीं रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी एंड हीलिंग से कमा के कुत्ते के ऊपर खर्चा कर रहे हैं. सो ये सब हुआ. उसके बाद ओनली 2 pups वर लेफ्ट. उसमें से घुंघरू का पैर का 3 डिजिट उड़ गया था एक्सीडेंट में, तो उसको ले आए सेवा करने के लिए. एंड उसके बाद सारे कुत्ते मर गए एंड ओनली 1 was left. दैट वाज लियो सिम्बा.
तो लियो सिम्बा बेचारा अकेला था, तो उसको भी लेके आए. ही वॉज हैविंग वन स्वेलिंग काइंड ऑफ थिंग, ट्यूमर काइंड ऑफ थिंग इन द बेली. उसको भी लेके आए. देन सत्यभिषा में सैटर्न एंटर किया एंड मेरे घर में रेस्क्यू बन गया. मतलब नाउ आई कैन से आई रन अ रेस्क्यू एंड आई हैव at during those days like मार्च अप्रैल में ऐसा था. मेरे घर में 7 कुत्ते थे and they were very cooperative. Like मेरा client, if I have a client to heal, like I don't meet them, everything is online. So if I have some client to heal, then I will start meditating, the music will be on, I'll start meditating, all dogs will be pin drop silent, and after I finish my meditation, after 1 hour, 1.5 hours, when I'm active, again they will start barking, they will making noise, they will ask for food and all, everything. They will interact with me. But whenever I'm doing healing and meditation, मतलब इनका जो सेंस है, मतलब डॉग्स का जो सेंस है, दे आर मोर सेंसिबल देन ह्यूमन बींग्स. मतलब मेरे एक फ्रेंड को मुझे याद है कि आई वॉज हीलिंग अ क्लाइंट, शी केम एंड इशारे से मैं बोली अभी मैं हील कर रही हूँ, अभी प्लीज़ चले जाओ, आई विल गो आफ्टर 1 hour or 2 hours एंड मीट यू. मतलब वो सुनी नहीं, क्योंकि 99% people does not have any idea what healing is. So it was so disturbing. जो मैं काम में कर रही थी वो काम अनसक्सेसफुल हुआ, क्योंकि हीलिंग बिल्कुल अकेले में किया जाता है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, कोई आवाज़ नहीं चाहिए एंड ऑल दिस थिंग्स. सो मार्च अप्रैल में मेरे घर में 7 कुत्ते रहे. फिर उसके बाद जैसे उनका सर्जरी हुआ था, सर्जरी किसी का स्टिच खुल गया, फिर वेट के पास जाके, क्योंकि गवर्नमेंट वेट इज़ टू फार, फिर प्राइवेट वेट के पास जाके 4,500 तक के एक टाँका लगाए. ठीक है. फिर उसके बाद उस डॉग को ले आए. फिर दूसरा वाला कुत्ता जो है वो, उसको जब छोड़े, इट वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल, जब अच्छा था छोड़े, उसको कोई जहर पिला दिया. जहर ऐसा पिलाया इतना भयंकर कि बिल्कुल ओनली ब्लड का पॉटी होने लगा. फिर उसको 4,000 का मेडिसिन, 4-4,500 का मेडिसिन के साथ टेकिंग केयर अगेन फॉर अगेन 1 month एंड ऑल. उसका ठीक हुआ तो फिर उसको छोड़े, एंड चकोला को भी छोड़े. फिर चकोला का मुंह से खून निकलने लगा. तो मतलब मैं भगवान को बोल रही थी, मैं शनिदेव को बोल रही थी, मैंने बहुत गलती किया कि आई टोल्ड यू, आई ड्रीम टू हैव अ रेस्क्यू, क्योंकि जब रेस्क्यू चलाऊंगी, ऐसा मन था बचपन से, तो भगवान को तो मैंने रेस्क्यू चलाना चाहती हूँ, आप मुझे हेल्प करो, इतना ही बताया. मैंने भगवान को कभी भी नहीं बोला था कि रेस्क्यू चलाना चाहती हूँ, गिव मी अ बिग हाउस, ताकि इतना सारा एनिमल, 7 कुत्ते रखने का जगह तो चाहिए. एक फ्लैट के अंदर आप 7 कुत्ता कहाँ रखोगे? कारपेट से लेके सोफा, हर जगह कुत्ता बैठ के वो गंदा करके उसका कवर फाड़ के ऐसे ही करेंगे. बिकॉज स्ट्रे डॉग्स आर स्ट्रे डॉग्स, यू कैनॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग वेरी लाइक हाई स्टैंडर्ड फ्रॉम स्ट्रे डॉग. जहाँ भी रहेंगे वह 4 चीज़ चबा के ख़त्म करेगा, ख़राब करेगा, सुसु कर देगा, वॉट एवर इट इज़. तो मैं सोच रही थी अफसोस कि मैंने रेस्क्यू खोलना चाहती हूँ, ये तो मैंने भगवान से मांगा था, लेकिन रेस्क्यू के लायक हाउस मैंने नहीं मांगा था. देयर आर सो मेनी पीपल, दे हैव हाउसेस, दे डोंट कीप एनी डॉग इनसाइड. वो महंगा से महंगा 20-30 हज़ार का कुत्ता खरीद के लाके उसको बाहर किनल बना के रख देते हैं और घर के अंदर नहीं घुसने देते. तो ये स्ट्रे तो बिना पैसे का है. स्ट्रे तो वो लात जूता मार के भगा देते हैं. दे हैव हाउस बट दे डोंट हैव अ दिल लाइक मी. सो आई डोंट हैव अ हाउस. फ्लैट के अंदर मैं 7 कुत्ता रखी, खिलाना पिलाना, छोटे बच्चे टॉयलेट, सुसु पॉटी सब कुछ बाथरूम में करते थे, एंड एवरीथिंग आई हैव क्लीन्ड. तो सर्वेंट के लिए तो भगवान को मांगा नहीं था, ना ही बड़ा सा मकान के लिए मांगा था जहाँ पर कुत्ते रहने का जगह है. इसीलिए रेस्क्यू कैंप करना चाहती थी. मतलब मैं चाहती थी मेरे घर में रेस्क्यू कैंप हो. आई वॉन्टेड टू बी अ रेस्क्यूअर. और सैटर्न सत्यभिषा में घुस के ही मुझे मतलब मुझे पछाड़ के रेस्क्यूअर बना दिया. और सर्वेंट एंड हाउस तो मैंने मांगा ही नहीं था, तो सर्वेंट गायब हो गई उस समय. हाउस मैंने मांगा नहीं था, हाउस नहीं मांगा था, इसलिए हाउस भी नहीं मिला. उस फ्लैट के अंदर ही मुझे इतना सारा कुत्ता रखना पड़ा. सो दिस इज़ वन एक्सपीरियंस. एंड कुछ लोग जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, बिकॉज दे आर लाइक मेरे बच्चों के जैसा एज है. लाइक आई एम 55, दे आर 30-35. मैं बहुत प्यार करती हूँ. ऐसे बहुत लोगों के साथ हिच हुआ, एंड वो ऐसे बिहेव किए, मतलब सरप्राइजिंग, शॉकिंग, वॉट एवर.
सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है भाई, तुम्हारा पर्सनल लाइफ है, तुम दारू पियो, चाहे तुम एक्स्ट्रा मेटल करो, चाहे तुम मीट मछली खाओ, जो भी करो। मेरी पर्सनल लाइफ है, आई डोंट डू ऑल दीज थिंग्स एंड आई कैन नॉट मिक्स अप विद दीज पीपल हु डज। ये करूँगी तो फिर मैं हीलिंग करूँगी, हीलिंग होगा ही नहीं। सो ऐसा काम मैं खुद नहीं कर सकती हूँ, ऐसे लोगों के साथ मैं मिक्सअप भी नहीं कर सकती हूँ। हीलिंग नहीं होता है। जो लोग पूछते हैं ना कि हीलिंग के लिए कोई पैसा लेते हो, तो फ्री में करना चाहिए, सन्यासी टाइप का थिंग। फ्री में नहीं करेंगे, क्योंकि आप मीट मछली खाओगे, आप एंजॉय करोगे एंड आपको हील करते हुए मैं ब्रेकफास्ट लंच स्किप करके खाली पेट बैठी रहूँगी, एक मुट्ठी चना एक फाँक खीरा खा के, एंड मैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से मैंने मिल ही नहीं पाऊँगी, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नॉन वेजिटेरियन। और मेरा पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रहेगा कुत्तों के अलावा, इस कुत्तों का सेवा करना, ऑल दीज थिंग्स। एंड उसके बाद मैं फ्री में कर दूँगी। क्यों भाई? क्यों भाई? यू हैव नॉट लेफ्ट योर पेरेंट्स, you have not left your close ones because they are non-vegetarian, you have not stopped having alcohol. How much you have sacrificed? आपने कुछ भी अगर sacrifice किया हो तो खुद का healing खुद कर सकते हैं, whatever. So these were my experiences कि आँख में उंगली डाल के सैटर्न बोले कि देखो ये जिनको तुम दोस्त जैसे ट्रीट करते थे, all of them are jealous of you, none of them are your friend, none of them love you. और लव तभी कहा जाता है जब वाइसी वर्सा होता है। तो मेरी आँख खुल गए। देयर वर सो मेनी, एटलीस्ट 5 ऐसे लोग हैं जो मुझसे चीट किए इस दौरान, जिस समय मैं 7 कुत्ता घर में रख के उनका सूसू पोटी खाना पीना सब मैनेज करके बाहर के 20 कुत्तों को खिला के, उसके बाद भी मैं अपना प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी हीलिंग एवरीथिंग रखी हूँ। और ड्यूरिंग दैट टाइम जो मेरे क्लाइंट्स का हीलिंग आता था वो तो आता ही था, उसके बावजूद there were relatives who were suffering from cancer, relatives and very close friends who started suffering from cancer, and surgery हुआ, brain surgery हुआ किसी का, and all these things. brain surgery होना किसी का is something very risky because मेरी ननद जो है brain surgery के बाद बची नहीं। तो जिसका brain surgery हुआ like 1 month वो बेड पे हैं, 1 month 2 months I am healing them. So आप कह सकते हो it was very tough, very tough, yes, but 7 कुत्ते घर में नॉर्मली रहे, दे कोऑपरेट मी अ लॉट। इंसान बहुत घटिया होता है, कुत्तों के लायक नहीं होते इंसान। कुत्ते इंसान के लायक होते हैं या नहीं आई डोंट नो, बिकॉज इंसान तो जानवर के लायक भी नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंसान, वॉट एवर। आई हैव सीन ब्रेन सर्जरी के बाद उसको हील करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड एवरी डे तक, मतलब मैं बोलती थी मतलब उसके फादर को फ़ोन करके कि उसका बहुत दर्द है क्या ये सब जगह में, और ब्रेन के निचले हिस्से में एंड गले में एंड बहुत शोल्डर में, ये सब में बहुत पेन होता है क्या। ये शी वॉज सफरिंग हैवीली, शी इज़ माई रिलेटिव, मैं उसको हील कर रही थी तो उसका पेन मेरे में भी आ रहा था, बॉडी पेन, और उसको टॉलरेट करना बिकॉज शी वॉज द पेशेंट। सो उनसे तो कोई काम नहीं लिया जा रहा था, शी वॉज स्लीपिंग ओनली ऑल डे लॉन्ग, लाइंग इन द बेड, कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जा रहा था। इवन देन पूरा बेड रेस्ट में रहने के बावजूद उसको बहुत पेन था, और मैं बिल्कुल पूरा हाउस होल्ड, पूरा ग्रॉसरी एवरीथिंग करके 7 कुत्ता देख के उसके बाद मैं बिना खा के हीलिंग कर रही थी, क्लाइंट्स का भी कर रही थी, बैक टू बैक जो एक रिलेटिव जो बहुत बीमार है उसका भी कर रही थी। अब शी इज़ सेफ, शी इज़ बैक होम, उस समय के क्लाइंट्स भी सारा सेफ है, ऑल आर गुड नाउ। एंड then one teacher means favorite teacher of my son, his mother was suffering from cancer, and after that only news of cancer was coming. I had some friends in the close by, so some families had people with cancer. अब बैक टू बैक मैं कितना, मतलब आई एम सो मच एग्जॉस्टेड। क्लाइंट को हील करना ठीक है 1 आवर 2 आवर्स के लिए, क्लाइंट के प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं होता है, दैट इज़ एवरेज, 1 घंटा 2 घंटा क्लीन हील करने से इट इज़ इनफ। बट जो क्लाइंट नहीं है, जो मेरे लव्ड वन हैं एंड बहुत दिन से मैं उनको ऐसे ही फ्री हीलिंग करती हूँ एंड सडनली दे आर एक्सट्रीमली सिक, उनका हीलिंग करना पड़ेगा, तो इट इज़
टाइम वॉज रियली डिफिकल्ट। अभी तो खैर सैटर्न इज इन शतभिषा पदा 2, तो सैटर्न थोड़ा सा बेचारा शांत हो गया है। मतलब पदा 1 में जब एंटर किया तब वो धक्का समझ में आ रहा था ना, ग्रेजुअली भी रह के हम लोग हैबिचुएटेड हो गए हैं ना। आई एम हैबिचुएटेड टू हील सो मेनी 15 मीन्स बहुत लोगों को 3-4 लोगों को हील करना है, बिकॉज ऑल आर सफरिंग इन कैंसर। एंड रेस्क्यू खोलने का जो सपना, जो सैटर्न अपने ऑफिस में बैठ के, वो सपना तो मेरा पूरा कर दिया। और मेरी ही गलती है, मैंने बिग हाउस नहीं मांगा था कुत्तों को रखने के लिए, और मैंने सर्वेंट नहीं मांगा था कि आई नीड सर्वेंट। ऑल द रेस्क्यूअर्स दे आर हैविंग सर्वेंट, फुल टाइम सर्वेंट। जो रेस्क्यूअर्स है दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर्क इन फॉरेन कंपनीज एंड दे अर्न रियली गुड, क्योंकि रेस्क्यू जो चलाए हैं ओनली दे नो। बहुत सारा ऐसा एनिमल का मेडिसिन होता है जो ह्यूमन मेडिसिन से भी जिसका प्राइस ज़्यादा है। सो प्रोवाइडिंग एवरीथिंग वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, सर्वेंट भी नहीं था एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड नाउ आई वॉन्ट टू नो योर एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स कि सैटर्न अपने ऑफिस में जब भी बैठता है, 30 साल में एक बार बैठने आता है, जब भी बैठता है तो सैटर्न गिव्स यू रिजल्ट। सैटर्न गिव्स यू रिजल्ट वॉट एवर यू डिज़र्व, जो तुम्हें चाहिए वो नहीं, जो तुम डिज़र्व करते हो, एंड सैटर्न गिव्स यू रिजल्ट। सिर्फ डिज़र्व नहीं, तुमने कुछ मांगा था, अगर उस लायक तुम्हें लगा, जो सैटर्न को लगा कि हाँ तुम उस लायक हो, तो दैट ऑल्सो सैटर्न गिव्स। तो मेरे धक्कों के बारे में मैंने कहा, बताया। आई वॉन्ट टू नो अबाउट others also, whoever has faced whichever type of result from Saturn in last few months when Saturn was in Satyabhisha. Bye, have a nice time.